So the charges must be in state of rest. And what is the meaning of point charge? Anybody know what is the meaning of point charge? Point charge is the charge whose size is very, very small as compared to the separation between the charges. If you compare this distance with the size of the charge, and if the size of the charge is negligible as compared to the distance between the charges, then you can call these charges as point charge. Beta, is it clear what is point charge? हाँ बेटा, अगर चार्ज का साइज इस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन से बहुत 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 स्मॉल है, मतलब क्या है, नेग्लिजिबल है. अगर चार्ज का साइज, बेटा चार्ज का साइज कैसे मेजर करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ द रेडियस. अगर आपके चार्ज का रेडियस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर उसके कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, तो आप इस चार्ज को पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं. ये पॉइंट क्लियर बेटा? समझ में आ गया पॉइंट चार्ज क्या होता है? यस बेटा. सो दीज आर द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस and r is the separation between these two charges. Let us take at point A the charge having magnitude q1 and at point B the charge having magnitude q2. A पॉइंट पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड q1 है और B पॉइंट पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड q2 है, और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो है r. नाउ according to Coulomb's law, the electrostatic force of interaction. What is the meaning of interaction beta? This force may be attractive or repulsive. कि ये जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस पर. अगर दोनों चार्ज सेम होंगे तो रिपल्शन होगी, दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगी. So according to Coulomb's law, the electrostatic force of interaction between two stationary point charges is, first point beta, is directly proportional to the magnitude of charges. Is directly proportional to the magnitude of charges. Now the force between these two charges is directly proportional to the magnitude of charges. बेटा ये जो मैंने मॉड्यूलस लगाया, मोड लगाया, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? Sorry, magnitude of product of charges. What does this modulus represent? ये जो Q1 Q2 पे हमने मोड लगाया, इसका क्या मतलब है? Nobody know? बेटा इसका मतलब होता है मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड. अब मैं जो बात कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा. न्यूमेरिकल में चाहे चार्ज की वैल्यू आपको नेगेटिव दी हो या पॉजिटिव दी हो, कूलम्स लॉ में आप हमेशा चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव ही लिखेंगे. इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल? ओके बेटा. Whatever be the polarity of charge, हाँ बेटा मैं बता रहा हूं.
इसमें ये बताया गया बेटा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के ऊपर, कि ये जो दो चार्जेस है Q1 और Q2, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसका जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है बेटा, ये बताया आपको फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आई एम सेइंग दैट प्लीज कीप इट इन माइंड when you are solving the numerical, whatever be the polarity of charge given in the numerical, either negative or positive, you have to write only positive value in this place. Is it clear beta? Now second is inversely proportional. Is inversely proportional to the square of distance. Is inversely proportional to the square of distance between them. So this force is inversely proportional to the square of distance between them. If you are going to increase the separation, अगर आप इनके बीच का separation increase करेंगे, then force will increase or decrease? Yes, because it is inversely proportional. And if you decrease the separation, then force will increase. Now write it down बेटा, up to this point लिख लीजिए, फिर मैं next page करूंगा start. बेटा, how many of you are taking the class through mobile data? All are taking the class through Wi-Fi? Okay, 2 students are taking from mobile data. Beta, is there any kind of problem you are facing in this app? Okay बेटा, यही मुझे कंफर्म करना था कि वॉइस वगैरह ठीक आ रही है ना. So by mobile data student can take classes through this app. So बेटा याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ जो है वो आपका स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कूलम्स लॉ के हेल्प से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में निकाल सकते हैं, और ये जो फोर्स है ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बिटवीन द टू चार्जेस. अभी एक और फैक्टर है, दैट इज नेचर ऑफ मीडियम. व्हाट मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू चार्जेस? बेटा, हैव यू रिटन ऑल? एनीबडी लेफ्ट? किसी का नहीं हुआ है कोई तो बता दीजिए. ओके बेटा, नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. अब देखिए थर्ड इक्वेशन में बताया गया, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम. अभी आपकी दो क्लासेस बेटा मिस होगी, एक दो क्लास मिस होगी. एक क्लास ना फीवर हो गया था मुझे, इसी वजह से मैं ले नहीं पाया क्लास आपकी. बेटा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम. ठीक है, तो तीन यहाँ पर फैक्टर है. फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. सेकंड, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. एंड थर्ड, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. नाउ यूजिंग above equations, using equation 1 2 2 हमने कैसा लिखा है, ये वाला लिखा है. using equation 1 2 and 3, 1 2 and 3 we get. now you are thinking that यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में तो कुछ है ही नहीं, है तो लिटरेचर लिख दी सर ने. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, इट इज थ्योरी. तो ये भी हमने इंक्लूड की. किस लिए की बेटा, अभी आपको पता चल जाएगा. नाउ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1 Q2, and inversely proportional to the
स्क्वायर ऑफ मीडियम, सॉरी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। बेटा ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? ओके, नाउ वेयर इज दिस नेचर ऑफ मीडियम? तो देखिए, when you remove the sign of proportionality, you have to put a constant here, and that constant here is known as k, and you should write k in small letter. Okay, k जो है आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल k नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। k q1 q2 by r square. What is k beta? Where k is called Coulomb's constant. k is called Coulomb's constant, and k की जो वैल्यू है, it depends on nature of medium. It depends on nature of medium. k की वैल्यू बेटा नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। अब देखिए, जो भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू होती है, बट ये जो k की वैल्यू है नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। तो देखिए, इन मीडियम सॉरी, इन मीडियम, अब बेटा किसी भी मीडियम में जो k की वैल्यू है वो क्या होगी? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन? देखिए यहां पर मैं 3 आपके सिंबल लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। बेटा ये मैंने बनाया, आप कैसे बनाओगे ये भी देख लो। पहले आप सी बनाओगे, सी, और बेटा सी के अंदर आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है। दिस बोथ आर रॉन्ग। यू हैव टू मेक लाइक दिस, ऐसा सी बनाएंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ई है ये ईएमएफ ऑफ सेल रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट चैप्टर में। और कुछ स्टूडेंट इसको ऐसा बना देते हैं, ये भी गलत है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और ये जो स्मॉल ई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपको इनमें से कोई भी सिंबल नहीं बनाना है, यू हैव टू मेक ओनली दिस सिंबल विच आई एम टेलिंग यू। सो एप्सिलॉन, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं बेटा? इसको प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन। एक बार बोल लीजिए एप्सिलॉन, हाँ ठीक है बेटा। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। What is the meaning of permittivity? Permittivity means to give permission, to give permission to the given electric field, कि जो भी यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगी इन चार्जेस की वजह से, वो उस पर्टिकुलर मीडियम में उनको कितना अलाउ करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप यहां, मैं इस रूम में बैठा हूं और आप साथ वाले रूम में हैं, और अगर बीच में एक वॉल बना दी जाए, एक मीडियम आ गया, कंक्रीट की वॉल आ गई, तो क्या आपको साउंड वैसी सुनाई देगी जब वॉल नहीं थी, या कम सुनाई देगी? कम सुनाई देगी। इसका मतलब जो साउंड है उसको मीडियम ने क्या किया बेटा? अफेक्ट किया। वैसा यहां पर भी होता है कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर आपने कोई मीडियम इसमें फिल कर दिया, यहां पर कोई मीडियम आ गया, तो मीडियम क्या करेगा? इस फोर्स को अफेक्ट करेगा। इस फोर्स को इंक्रीज भी कर सकता है और इस फोर्स को डिक्रीज भी कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। सो दिस एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। एक यहां पर टर्म है बेटा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट? नॉट इस ओ को कहा जा रहा है, ये जो ओ लिखा है ना हमने, वैसे ओ का मतलब ऑप्टिमम होता है, ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम होता है, बट इसको हम रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? जहां पर भी आप फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में अगर आप ये देख रहे हो ओ, ये ऐसा नॉट जो बना हुआ है,
तो समझ लेना हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, फ्री स्पेस की, ठीक है, वैक्यूम और फ्री स्पेस की. सो व्हाट इज इट? इट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री स्पेस? What is the meaning of free space? Free space means there is no medium. There is no medium. वहां लिख लीजिए बेटा, पेंसिल से साइड में लिख लिया करो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं. फ्री स्पेस का मतलब देयर इज नो मीडियम, वैक्यूम. एक होता है बेटा एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. रिलेटिव इलेक्ट्रिकल permittivity. So ER, relative electrical permittivity, is the ratio epsilon by epsilon naught, means electrical permittivity in medium divided by electrical permittivity in vacuum. बेटा एक कांस्टेंट क्लियर हो गई सबको? ठीक है, तो यहां पर बेटा एप्सिलॉन है. आप मुझे बताइए यहाँ पे एप्सिलॉन की क्या वैल्यू आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन? दैट इज एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर. कैन वी राइट इट एज? बताइए बेटा, ऐसे लिख सकते हैं? अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ के. तो हमने यहां पर लिखा था इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. तो मीडियम को कौन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे? हु इज डिफाइनिंग द मीडियम? दिस कूलम्स कांस्टेंट. Coulomb's constant is defining the medium. And what is the value of epsilon naught? The value of epsilon naught is, बेटा याद रखनी है, आपको याद करनी है, 8.85. अच्छा ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको रहने दीजिए अभी, पहले आपको वो बता देंगे ना कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू. ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए. इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन यू आर वेलकम, यू कैन आस्क योर डाउट. बेटा ये एक रेशियो है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, कि वो मीडियम में कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस में कितना करता है. जो फ्री स्पेस होता है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड होता है, ठीक है. जैसे आपने मान लीजिए दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है, तो वहां पर आपसे कहेगा जी आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए, ठीक है बेटा, 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए. तो ये स्टैंडर्ड है. अब जितने भी वहां पर कैंडिडेट आएंगे तो उन सबकी हाइट को किससे कंपेयर किया जाएगा? 5 फीट 5 इंच से. अब जिनकी हाइट इससे ज्यादा होगी उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है. तो रेशियो के बेसिस पे निकालते हैं. तो एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर है वो फ्री स्पेस का है, कि इतना तो है आपका वैक्यूम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इतना लाइंस को अलाउ करेगा. अब उस मीडियम के अंदर जो अलाउ करेगा उसका कंपैरिजन करते हैं, रेशियो निकालते हैं. सो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. जब भी आप किसी भी रेशियो को फाइंड करोगे तो उसके लिए हम यहाँ पर रिलेटिव यूज करते हैं, मैग्नेटिक में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी. So ER is equal to E by E naught, epsilon by epsilon naught. Electrical permittivity in medium divided by electrical permittivity in free space. Is it clear? Matthew, what happened? Your signal have broken? Okay, okay. आजकल बेटा वायरल फीवर बहुत चल रहा है.
अभी अपने आप को बचाओ आप सब ना। सो ई आर इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये नोट कर लिया बेटा सबने? मैं सेव भी कर देता हूं ताकि आप वहां से स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर सकें इसको। मैंने सेव कर दिया, ठीक है बेटा। सो अब देखिए यहां तक हमने सीख लिया। हमने ये सीखा कि दो चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एंड ये जो फोर्स है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो मीडियम है उसको कूलम्स कांस्टेंट ने डिफाइन किया, और कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू जो आपके पास आई वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बट कीप इट इन माइंड दैट दिस वैल्यू इज इन केस ऑफ मीडियम, क्योंकि बुक्स में आपको ये वैल्यू नहीं दिखाई देगी। बुक्स में आपको कौन सी वैल्यू दिखाई देगी अब मैं बता रहा हूं, देखिए। इन वैक्यूम, बेटा वैक्यूम में निकालते हैं, ठीक है, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 1/4 पाई epsilon naught epsilon r. Can you tell me what is the value of epsilon r in vacuum? Epsilon upon epsilon naught. Epsilon क्या है बेटा? Epsilon is for the medium, but here medium is, what is the medium in this case? क्या ले रहे हैं बेटा मीडियम? वैक्यूम। और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन कौन से वाला आएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट एप्सिलॉन, देन ई आर इक्वल टू 1. It means in the case of vacuum or free space, the value of K is 1/4 pi epsilon naught into 1. So the value of K is 1/4 pi epsilon naught. ठीक है बेटा? तो वैक्यूम के केस में ये वैल्यू आपकी आएगी, और बुक्स में आपको यही वैल्यू दिखाई देगी वैक्यूम के केस में। Now what is the Coulomb's formula here? Therefore F is equal to K मॉड्यूलस ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कौन से किसमें बेटा? मीडियम में या वैक्यूम है ये फोर्स? दिस फोर्स इज इन मीडियम और इन वैक्यूम? Yes, so by observing this epsilon naught, you can say that this force is in vacuum. If there is medium, then there must be ER. Now let us discuss the value of K and value of epsilon naught. Beta, value of epsilon naught is 8.85. Remember this value, 8.85 into 10 की power minus 12. And the value of Coulomb's constant, 1/4 pi epsilon naught is 1/4 pi value is 3.14 and epsilon naught is 8.85 into 10 की power minus 12. When you solve it, you get 9 into 10 की power 9. And what is the unit? K की वैल्यू देखिए, F की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड यहां पर देखिए K और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो जो यूनिट K की है उसी का रेसिप्रोकल आपका एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। क्या हो जाएगी बेटा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू जो मैं आपका हाईलाइट कर रहा हूं, K की वैल्यू और जो आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू बेटा आपको लर्न करनी है फॉर द न्यूमेरिकल्स। एनी डाउट? बेटा डाउट कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, इफ देयर इज एनी डाउट।
फिजिक्स क्लास में यही सबसे बड़ा एक जो है टारगेट होना चाहिए कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर डाउट है देन देयर विल बी प्रॉब्लम. यस यस प्लीज. देखिए, व्हाट इज ईआर? ईआर इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम divided by electrical permittivity in vacuum or free space. Now I am talking about vacuum. In vacuum, what is the medium? When we take vacuum, then medium is vacuum. And for vacuum, what we use? O. We use O. That is not. So epsilon naught. Okay, now epsilon naught cancel out epsilon naught and we get 1. So in case of vacuum, the value of ER, relative electrical permittivity, is 1. That's why I have written here 1 at the place of ER. Is it clear now? Any other student having any doubt? Yes बेटा, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है K is electrostatic constant, electric constant, but its real name is Coulomb constant. Okay, and make here small k, not make capital K. Beta, capital K represents dielectric constant. Okay, now we should proceed further. I think you have all have written. Now conclusion is we find out beta dielectric constant. ये पहले पढ़ लीजिए. Dielectric constant. बेटा नेचर में कितने तरह के मटेरियल्स आपने पढ़े अब तक? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर सुना आपने? हैव यू हर्ड अबाउट सेमीकंडक्टर? Conductors are those which allow the passage of flow of charges through them. Insulators are those which do not allow the passage of electrons through them because they don't have free electrons. And semiconductors are moderate, which behaves as a conductor at room temperature. रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और जीरो टेम्परेचर पर आपका सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है. इट मींस सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर विच वी प्रोवाइड देम. ये तीन तरह के मटेरियल होते हैं, ठीक है ना बेटा? एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर. नाउ देयर इज फोर्थ मटेरियल दैट इज डाइलेक्ट्रिक. हैव यू हर्ड अबाउट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस? कभी सुना आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में? नहीं सुना बेटा? केमिस्ट्री में नहीं सुना है? केमिस्ट्री में पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. yes beta, polar molecule and non polar molecule makes the substance dielectric. We will study dielectric topic in chapter 2. chapter 2 में बेटा एक टॉपिक आएगा कैपेसिटेंस. उस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे. we will study dielectric there, okay, because the use of dielectric is in capacitance. so we will study dielectric substance there in chapter 2 topic capacitance in a detailed manner. Now here we just want to prove that what is dielectric constant and why are we studying it so earlier? To solve numerical only, because in NCERT 1 or 2 numericals are given of dielectric substance. So there they use term dielectric constant. That's why I am explaining you here. But detailed होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, all concepts we will study in chapter 2. Now dielectric constant is represented by symbol capital K. Capital K is the symbol of dielectric constant, and I prove it right now that K
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के इक्वल होता है। ये हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर, इट इज द रेशियो, it is the ratio of force between, beta B oblique W represents between, is it clear? It is the ratio of force between two point charges, two stationary point charges in vacuum to the medium. It means dielectric constant is the ratio of force in vacuum to the medium. Now Simran, you tell me beta, what is the force in vacuum? अभी हमने ड्राइव किया था फोर्स इन वैक्यूम, 1/4πε0, क्या किया था बेटा? सिमरन, इज माय वॉइस ऑडिबल बेटा? मानवी, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है बेटा आपको? यस बेटा, बताइए फॉर्मूला फोर्स इन वैक्यूम। बताइए बेटा, फोर्स इन वैक्यूम अभी किया था हमने। छवि आप बताइए। यस, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड फोर्स इन मीडियम 1/4π, वेरी गुड। यस, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही तो दो हमने ड्राइव किया बेटा अभी, है ना? दिखाऊं आपको कहां पे किया है? देखिए, फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम, ये रहा। क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ फोर्स इन वैक्यूम 1/4π epsilon naught Q1 Q2 by R square divided by 1/4π epsilon naught epsilon R Q1 Q2 by R square. Now we cancel out R square, Q1 Q2, 1/4π epsilon naught, सब कुछ cancel हो जाएगा. Now dielectric constant is equal to ER. So what we proved? We proved that dielectric constant is equal to relative electrical permittivity. ठीक है बेटा, ये नोट करिए आप एक बार। हाँ बेटा, नोट कर लिया आपने?
शिवांगी बेटा क्लियर हो गए जितने कंसेप्ट आज हमने किए सभी आपको? हाँ बेटा, आप सभी को एक जो है नोटबुक प्रॉपर बनानी है। आई होप यू ऑल आर मेकिंग। एक नोटबुक आपको जरूर बनानी है, ठीक है बेटा? अच्छा, अब आप एक काम करिए, अब इसके बाद हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो तो करेंगे ही, लेकिन अभी आप एक काम करिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकाल लीजिए बेटा। टेक आउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हाँ बेटा ठीक है, और भी स्टूडेंट करिए। देखिए बेटा, इसमें क्या है, दो चार्ज आपके पास है। एक है Q1 2 × 10⁻⁻⁷। बेटा जो मैं लिख रहा हूँ वो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है आपको? ठीक है, 3 × 10⁻⁷ कूलम, and the separation between the charges is 30 centimeter. Always use SI system for solving the numerical. It is in centimeter, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। Now what is the force? Force is K Q1 Q2 by R square. Now beta F equal to K. What is K? K is 9 into 10 to the power 9, and Q1 2 into 10⁻⁻⁷, Q2 3 into 10⁻⁻7 divided by R square. R is your 30 into 10⁻⁻² का square. Okay. Now F is equal to 9 into 3 to the 6 into 10 to the power -14 plus 9, that is -5, and 30 का square 30 into 10⁻⁻², this is 3 into 10⁻⁻1, so 3 का square 9 and 10⁻⁻², 9 cancel out 9, F will be equal to 6 into 10⁻³ Newton. Okay beta, is it clear? सिमरन, स्वरूप, शिवांगी, मानवी, आगे बेटा आपको समझ में? नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. For question number 2, this is 1 microcoulomb equal to 10 to the power -6 coulomb. 1 microcoulomb equal to 10 to the power -6 coulomb. Okay. Now in this question, anybody got the answer? The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 माइक्रोकूलम। बेटा 1 माइक्रोकूलम में कितना लेना आपने? 10⁻⁻6 कूलम। Due to another small sphere of charge Q2 equal to -0.8 microcoulomb, that you can write -0.8 into 10⁻⁻6 coulomb, and the force is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? So you have to find out the value of R. Now F is equal to K Q1 Q2 by R square. Now बेटा R square क्या आएगा आपका? K Q1 Q2 by F, and R is equal to under root of K Q1 Q2 by F. Yes, solve it, put the values and solve it and tell me the answer. I am waiting for your answer. देखिए बेटा कैलकुलेशन सिंपल कैसे करेंगे आप ये देखिए एक मिनट सभी। K की वैल्यू, हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके गुड। 9 into 10⁻⁹ Q1। अब देखिए कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है आपको, है ना? ये Q1 की वैल्यू है 0.4 into 10⁻⁻6, आगे है -0.8। आपने माइनस तो किसी ने कंसिडर नहीं किया ना, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। आपने हमेशा पॉजिटिव लेना बेटा, ये ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आपका नेगेटिव ले लेते हैं। डोंट टेक नेगेटिव, अगर आपने नेगेटिव लिया तो गलत हो जाएगा, फिर आपका आयोटा आ जाएगा इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ फोर्स इज 0.4, नो 0.2 न्यूटन। सो हाउ वी विल सॉल्व इट? सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, 2 2s are 4, this cancelled out. Now R is equal to under root 9 and 8 2s are 16 and 16 9s are 144. So it is 14.4 into 10 to the power -6 -6 -12.
minus 12 and plus 9, that is minus 3. Now R will be equal to under root 144 into 10 की power minus 4, because I remove this decimal. Now R is equal to 12 into 10 की power minus 2. So R is equal to 12 meter. 0.12 meter, sorry. Or R equal to 12 centimeter. But you have to find in meter. Okay, any doubt? This is the value of Coulomb's constant. I think you have not noted down it. जब आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया था ना, the value of K. Have you written the value of epsilon naught? This is the value of epsilon naught, and the value of K is 9 into 10 to the power 9 after solving it. Okay. Okay, beta. So now next part is there in the same question. What is the next part? Yes, beta. What is the force on the second sphere due to the first? So the force on the second due to the first is same, but the direction is opposite, because Coulomb's law obeys the Newton's third law of motion also. Tomorrow we will do Coulomb's law in vector form, and there I will prove that the Coulomb's law also obeys the Newton's third law of motion. ठीक है, तो हम जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में ये Coulomb's law in vector form करेंगे, और वहां पर प्रूव करेंगे कि जो Coulomb's है लॉ है वेक्टर फॉर्म में, वो प्रूव करता है कि इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट simultaneous reaction. Okay, so you can write here the second sphere also exert the same force on the first, but direction is opposite. Now your homework is you have to solve up to question number 1 to 1.5. Please note down beta. What is your homework? Yes, from question number 1.1 to 1.5 NCERT exercise. And बेटा असाइनमेंट में आप करेंगे क्वेश्चन. आई एम टेलिंग यू, 2 students have submitted the assignment. One is Matthew and I think other one is Chavi. मानवी, तो एक बच्चे ने और किया, किसने किया? शिवांगी ने किया फिर शायद. शिवांगी आपने सबमिट किया? हाँ बेटा शिवांगी ने सबमिट किया. छवि आप भी सबमिट करिए. मानवी, सिमरन बेटा आप भी सबमिट करिए असाइनमेंट. हाँ यहीं पे कर दीजिए, ऑप्शन है यहाँ पे असाइनमेंट कॉलम में, आप सबमिट कर सकते हैं, फिर मैं चेक कर दूंगा सबका. अच्छा बेटा असाइनमेंट में क्वेश्चंस कौन से करेंगे आप? देखिए एक मिनट में बता रहा हूँ. अभी आपने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 तक किए ना? ओके, अभी आप ये करेंगे बेटा एनसीईआरटी के ये 5 क्वेश्चंस, एंड जितना भी अब तक कराया वो रिवाइज करेंगे. कल जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंप्लीट करा दूंगा, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, कल की क्लास का हमारा यही टारगेट रहेगा. तो कल किस टाइम रखे क्लास? इसी टाइम रखे 7 PM. Okay, so tomorrow there will be class at 7 PM. Okay, any doubt beta? Anyone want to ask anything? एंड बेटा जिनकी अभी हाँ फीस पेंडिंग है वो फीस भी जरा सबमिट कर दीजिएगा. मैंने गूगल पे का लिंक वहां पे सेंड किया है. ओके, सो प्लीज सबमिट द फी देयर. एंड इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन लेट मी नो. आस्क योर डाउट इफ एनीबडी हैव. So tomorrow we will meet at 7 PM.